हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते। और मैं आप सबके सामने एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। और इसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी डॉक्टर ओमी सिंह से, who is a prominent Ranchi-based psychotherapist and psychologist. Earlier, she has served in RINPAS, that is Ranchi Institute of Neuropsychiatry and Allied Sciences, and presently she is founder of Curatia, which caters to different age group people with different mental health issues. So, mental health issue has become a very global worldwide concern, और different age group के लोगों को differently ये affect किए हैं। जैसे 19% adult population इससे affected हैं, वहीं 49% teenagers और 13% children। अगर इनका अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ तो दिस मे लीड टू बिहेवियरल इमोशनल एंड फिजिकल ट्रॉमा, जो कि फ्यूचर में इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इसका अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, और अर्ली डायग्नोसिस हो इसके लिए अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम एट लेंथ डिस्कशन करेंगे, और जो भी इसके साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है इसको भी हटाने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा सा एफर्ट होगा कि इस प्रॉब्लम को मैक्रो लेवल से लेकर हम माइक्रो लेवल तक लेके जाएं। सो विदाउट एनी डिले हम डिस्कशन अपना कैरी ऑन करते हैं विद डॉक्टर ओमी सिंह। I have with me Dr. Omi Singh. She's a founder at Curatia in Ranchi, and I just want her to introduce herself to all of you, what she does and what Curatia is all about. Her Curatia has a famous tagline. It has a tagline that says "Passion for Compassion." So let's talk to her. What it is all about. Hello, ma'am. Welcome to this show, and I just want you to introduce yourself to the audience, what Curatia is all about and what you do here. So, please. Thank you, Mamta ji. Myself, Dr. Omi Singh. I have done my, basically I'm a psychiatric social worker. I have done my MPhil PhD from RINPAS Ranchi. Right now I am part of Curatia. Curatia is a neuropsychiatric oriented, psychological based social enterprises where we cater all kind of mental health services. And as you have said, that is our punchline, passion for compassion. Definitely we work here with that compassion. So mental health is like a very rampant issue. Even this our medical services also are now nowadays paying attention to this particular thing. It is still seen as a taboo or stigma to the society. So how do you think mental health is should be taken by the people around these days? Yeah, definitely it's a stigma. You're very much right. Still people comes to us and they used to say कि मैम प्लीज़ किसी को आप बताना नहीं, साइलेंटली ये काम करना है. So most of the time even we are not getting help from the families also. So if children come, parents are there, but sometimes they are like कि तुम्हें psychiatrist के पास जाना पड़ा. So in that way they also feel that guilt inside the child. But like other physical problems, it is definitely. Yeah, I've heard in many different programs also. I just was listening. People they say that depression is a choice. Do you think it is a choice or that needs some medical attention? Why is it taken lightly even these days when it is a very serious issue? Depression is a very big term, very wide term, and there are some symptoms required for a diagnosis of a clinical depression. But nowadays, depression, people are using these terms as a synonym of sadness, being upset. But still, yeah, luxury है. Luxury people के पास ही है. They say luxury. But clinical depression is definitely a very severe issue, very severe mental disorder. One should attend, and the people around the patient should be very alert about it too. ये मुझे पता लगाना था कि इसकी अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स कैसे पता चले कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड दे नीड दिस थेरेपी. इनिशियली एज आई हैव टोल्ड, पहले मैंने कहा कि ज़रूरत किसके है, जिसका भी माइंड फंक्शनल है और इमोशनल है. सो द वर्ड फंक्शनल, द पर्सन इज़ नॉट बीइंग फंक्शनल. इफ विल टेक एग्जांपल ऑफ ए स्टूडेंट, तो अब उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोगों से मिलना छोड़ रहा है, उसका एपेटाइट कम हो रहा है, उसकी नीड इधर इट इज़ टू मच स्लीपिंग और स्लीपिंग लेस. बहुत कम, मतलब कोई भी चीज़ एक्सट्रीम्स में कर रहा है. Yes, और ज़्यादा टाइम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में चला, नॉट दैट कि 1-2 दिन ही किया फिर काम पे लगा. ट्रू. हाँ, एटलीस्ट ये 6 to 8 weeks तक ये प्रॉब्लम, ये साइन, अर्ली वार्निंग साइंस दिख रहे हैं. और वो आइसोलेटेड है, अलुफ है, और जिन चीज़ों में पहले वो काफ़ी इंजॉय किया करता था, वो सारे हॉबीज़, इंटरेस्ट उस धीरे धीरे छोड़ लिए उसने.
तो एंड कुछ हेल्थ का भी इशू होता है, और भी क्या क्या साइंस अगर दिखे कि कुछ वेट रिड्यूस हो रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है? बोथ आर, यू आर वेरी मच राइट ममता जी, बोथ आर सिम्टम्स। अगर वेट गेन हो रहा है, क्योंकि इसमें बिंज ईटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो ईटिंग डिसऑर्डर भी यू आर नॉट नोइंग कि ये भी धीरे धीरे एंटर कर रहा है। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ या कुछ? हाँ, स्ट्रेस में ज़्यादा ईटिंग हो रही है, या फिर नॉट ईटिंग एट ऑल, एपेटाइट ही लो हो गई है, तो नींद डिस्टर्ब हो रही है। स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग इशू। अगर वो अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, काम पे टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और नेगेटिव थॉट, इंट्रूसिव थॉट्स, Okay, suicidal thoughts, which is severe state of depression. If they are getting suicidal thoughts and again they are attempting, अगर वो suicide attempt भी ले रहे हैं, then it is high time to that they should be coming for the counselor. the people around the patient, around the person, they should be very attentive, क्योंकि हमारे साइकियाट्री में इमरजेंसी सुसाइडल केसेस ही हैं, दैट इज एन इमरजेंसी। जैसा मैंने आपसे बात किया था, तो आपने कहा था कि एकदम लास्ट स्टेज में मत आओ, इनिशियल स्टेज है, तो आर दीज द इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स? नहीं, डिप्रेशन तो फिर ऐसे इमीडिएट नहीं आता। स्ट्रेस अगर रहता है किसी चीज़ को लेके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जामिनेशन को लेके स्ट्रेस है, राइट? एग्जाम के लेकर कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, और वो स्ट्रेस की वजह से वो स्टडी अच्छा कर पा रहा, फिर उसने एग्जाम दिया, नेक्स्ट डे वो स्ट्रेस फ्री हो गया, तो इट इज़ अ स्ट्रेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिविटी। लेकिन कोई ऐसा स्ट्रेस जो हैंडल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लव रिलेशनशिप का है, चाहे वो कंपटीशन क्रैक करने का है, या अनसक्सेस का है, या फिर फैमिली में कुछ डोमेस्टिक वायलेंस है, या पेरेंट का कॉन्फ्लिक्ट है, या कहीं अब्यूज कोई हो रहा है पर वो बहुत शेयर नहीं कर पा रहा, और ये स्ट्रेस अगर रह गया 6 महीने 8 महीने, तो ये एंग्जाइटी में एंटर कर जाता है। ऑल राइट, ओके ओके। तो ये आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, हैव यू रूल्ड आउट कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस स्ट्रेस, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? मतलब पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, और सोसाइटी में एज अ, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली मेम्बर्स को का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से आप क्या कहना चाहती कि रीज़न क्या है, क्यों होता है ऐसा? सपोज मैं अगर स्ट्रेस लेवल में, मैं हमेशा देखती हूँ कि एक हाई स्कूल किड है, या फिर वो बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है एग्जामिनेशन, अगर उसका हम लेकर चाहते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप वो ये एज ब्रैकेट भी बता दीजिए कि कौन से बच्चों में ज़्यादा एज जो ग्रुप है वो ज़्यादा इसके लिए ससेप्टेबल है? 15-16 ईयर्स से लेकर के 28-29 ईयर्स तक। या मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बताऊँ तो पीपल बिटवीन एज ऑफ 18 and 33 सबसे स्ट्रेस्ड लोग हैं ये। ओके, तो स्ट्रेस के पीछे रीज़न आपने अभी तक आपकी एक्सपीरियंस से आपने क्या पाया है? क्योंकि इसी समय उन्हें एकेडमिकली भी खुद को प्रूव करना है, प्रोफेशनली, और एट द सेम टाइम फैमिली, जिस फैमिली में है वो है, वहाँ भी एक्सेप्टेंस तब मिलता है जब वो स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनका। बिहेवियर से ज़्यादा आज की डेट में हर बच्चे को के ऊपर ये है कि दे हैव टू मेक द बाउंड, उन्हें करना ही है, तो उन्हें करके देना ही है। तो पीयर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, लोगों सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करने की जो अभी रेस चल रही है, मुझे लगता है वो ज़्यादा परेशान करती है, स्ट्रेस करती है। इवन पेरेंट्स भी अपने स्ट्रेस को बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, और बच्चे भी पूरा स्ट्रेस में नोइंगली और अननोइंगली ममता जी वो ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट के थ्रू। तो आपने बहुत सही टर्म स्टार्ट किया है, दैट इज़ पेरेंट। अगर पेरेंट की तरफ से वो रहे, एक तो आपने पूछा कि क्यों ये हो रहा है, पहले तो इतना नहीं था, अब क्यों हो रहा है, तो एक तो मैंने कहा कि द चाइल्ड और द पर्सन हैज़ टू प्रूव देमसेल्फ, उन्हें अपने को प्रूव करना ही है। तो वो 16-17 ईयर्स के एज से वो प्रेशर बनने लगता है अबाउट द करियर। उसी समय एक टाइम ऐसा हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तो ऑपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्शन है, तो एक रिलेशनशिप और लव लाइफ, ये चीज़ों का भी स्ट्रेस उस समय आने लगता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज बोथ द थिंग्स। टाइम की उन्हें ऐसी ही कमी रहती है, कोचिंग है, स्कूल है। ऑल राइट, मतलब ये सर, तो आप प्लीज़ अपने जो इतने आपने पेशेंट्स को देखें, कुछ आपको एक आध आपने जो चैलेंजेस आपने जो फेस किया दैट वाज डिफ़िकल्ट टू डील विद, और आपने फिर उसको सक्सेसफुली कुछ किया, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से कि एक आध कुछ एग्जांपल मिल जाए कि किस टाइप के पेशेंट्स को आप डील किए और चैलेंजिंग था आपके लिए? राइट। इसमें कुछ बच्चों का ही मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, दैट मीन्स उनका एज ग्रुप जो 18 से 20-22 साल तक के बच्चे होते हैं। खासकर अगर बच्चों ने कभी भी चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है ना, फैमिली ट्रॉमा है, किसी का डेथ हुआ है, कोई भी चाइल्डहुड एंग्जाइटी रही है, तो हर पेरेंट को चाहिए कि बिल्कुल एक बार रोल आउट करा ले साइकोलॉजिस्ट के पास जा करके कि ये, आई एम नॉट टेलिंग कि न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास मेडिसिन के लिए जाए, क्योंकि ये साइकोसिस नहीं आया, बट न्यूरोसिस इज अ सिम्टम विच इज़ बेस्ड अपॉन स्ट्रेस एंड वरी।
तो अगर वो बच्चा कभी चाइल्डहुड में रहा है किसी तरह का और वो उसके अनकॉन्शियस में चला गया है और वो उसे कहीं ना कहीं पाइलअप है और उसे डिस्टर्ब करता है प्रेजेंट में कॉन्शियस में आके, तो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स डैमेज हो सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल से आप बताऊँ एक केस, इफ आई रिमेंबर, कि वो बच्ची अपने घर में प्रॉब्लम देख रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस है ना, सिंस चाइल्डहुड। हाँ, और वो क्लास 11th में मुझसे कांटेक्ट की थी एंड शी वाज देयर विद द क्वेश्चन, मैम मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ क्या? ओके, अच्छा। And I was surprised कि schizophrenia is a big term and how this child can use this term for herself. And she said, no ma'am, you just tell me, am I schizophrenic? I said, What symptoms did she spoke about? कुछ बताया कि उसे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो schizophrenic है? That's a big story when I started doing the psychoanalysis and history taking. The child was having presently symptoms, उसको ये हो रहे थे कि वो डिसोसिएट हो जाती थी, वो जोन आउट हो जाती थी, वो स्टडी भी कर रही तो वो जोन आउट हो जाती थी, वो प्रिपेयरिंग फॉर हर मेडिकल एग्जामिनेशन, बट वो जोन आउट हो जाती थी, उसको नींद नहीं आती थी, उसकी भूख कम हो गई थी और ये पिछले 2-3 सालों से हो रहा था। एंड शी वॉज ट्राइंग एंड शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, सच अ ब्राइट स्टूडेंट टिल द टाइम, बट वो एंजाइटी डिसऑर्डर आगे बढ़ते बढ़ते डिसोसिएशन में एंटर कर गया था। एंड द चाइल्ड वाज नॉट नोइंग, शी थॉट, उसने गूगल में जितना सर्च किया तो उसे लगा कि मैं इस तरीके से जो हो जा रही हूँ तो ये साइकोटिक सिम्टम्स हैं। Okay. So how did you help her, healed her? फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड नोइंग द रूट कॉज, कि इस बच्ची को ये एंजाइटी कब हुई, कैसे हुई और इस एंजाइटी ने कितना इम्पैक्ट डाला। एंड इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम भी लगा कि डेफिनेटली इट्स वेरी राइट क्वेश्चन, वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, थेरेपीज आर वेरी टाइम टेकिंग, नीड पेशेंस, पेशेंट्स नीड पेशेंस, time, energy, patience, everything is very much required. I again request parents to be patient, है ना, विद दिस प्रोसेस, क्योंकि ये इंजरीज उस बच्चे ने क्लास 4-5 इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, मतलब तुरंत चाहिए होता है, मगर ये एक लाइफ स्टाइल के ऊपर पूरा आप वो देखते हो कि कैसे वो उसके हिस्ट्री रहे और फिर आगे कैसे होना चाहिए। वी स्टार्ट कलेक्टिंग द इंजरीज, जितने भी इमोशनल इंजरीज हुए, कब से हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, वी स्टार्ट कलेक्टिंग देम। और फिर उसके बाद जब हमारे पास सारे पैथोलॉजी जमा हो जाते हैं, साइकोपैथोलॉजीज, उसके बाद कुछ वी गो थ्रू विद सम साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज। डेफिनेटली वी डू नॉट वांट टू लेबल द चाइल्ड, है ना, हम जान के भी कई बार बच्चे को बोलते हैं, नो नो इट्स ओनली एंजाइटी, नथिंग एल्स। You are being too sensitive about this. ऑलरेडी चिल्ड्रन आर, हाँ, दे आर टू मच सेंसिटिव, दे आर इन ट्रबल। अगेन अगर हमने लेबल कर दिया किया तुम्हें तो हो गया ये प्रॉब्लम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज द टर्म डिफरेंस, इट्स अ वेरी फैंसी टर्म नाउअडेज। हाँ, ये तो मतलब बस ऐसे ही है, टीवी देख के सब इन्फ्लुएंस हो गए। एंड एंजाइटी है, डोंट वरी एंड विल बी फाइन, बस आपको कुछ दिनों तक यू नीड टू बी विथ मी, यू नीड टू शेयर एवरीथिंग विथ मी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स से तो हम लोग बहुत कम शेयर करते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स से हमने शेयर कर दिया, अगेन एट द होम दे विल स्टार्ट गेटिंग जजमेंटल और फिर चिल्ड्रन थेरेपी में आना बंद कर देंगे। ओके, तो हाउ फिर लास्ट में क्या उस पेशेंट का जो आपकी थी? लाइक टू टेल यू वन थिंग, जैसे कपल के बीच में बहुत कॉमन है झगड़े होना छोटी छोटी बात पे, राइट? तो वो बच्ची वॉज वेरी सेंसिटिव, सी यूज टू सी एंड नो, झगड़े सारे वो देखा करती थी और कभी कभी वो एक दूसरे को पुश भी कर दिया करते थे। रात में ये झगड़ा उसने सुना, देखा, अगले दिन सुबह उसकी मदर बोलती थी, नथिंग हैज हैपेंड, जस्ट गो टू स्कूल, टेक योर बैग, गो टू स्कूल। ओके, मतलब छुपाते हैं पेरेंट्स, मतलब बच्चों के साथ शेयर नहीं करते। इट्स ऑल राइट। एंड अर्लियर, जैसा आपने कहा कि अब क्यों हो रहा है मैम, अर्लियर हमारे पास एक बिग अम्ब्रेला था ज्वाइंट फैमिली का। हाँ, मदर इज नॉट टेलिंग, शी इज ऑलरेडी ऑफेंडेड विथ हर मैरिटल स्टेटस, ठीक है, फादर इज बिजी विथ हिज वर्क, देन हु इज देयर एट होम, बुआ है, दादी है, चाची है, नानी, शी कैन गो टू समबडी फॉर लाइक दे आर देयर, है ना। शी कुड हैव आस्क्ड कि ऐसा क्यों हुआ दादी, तो दादी बोलती ये दोनों ऐसे ही लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, सुबह सारे प्यार से रहेंगे, डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स। दैट्स राइट। हाँ, तो ये दिस वाज अ बिग सपोर्ट, ओके इट्स ओके, दादी यूज्ड टू जनरलाइज द थिंग्स, इट्स वेरी कॉमन, ये हर घर में होता है। नाउ इट इज दिस, नो दादी, इवन मदर्स आर वर्किंग, इवन मदर्स आर नॉट देयर, इफ एट ऑल इन द इवनिंग मदर सोचती कि मैं उससे बात कर लूँगी, चिल्ड्रन नीड एक्सप्लेनेशन। सो मुझे अभी तक आपकी बात से यही कंक्लूजन मिला है कि आप कहना चाहते हैं कि बच्चों से बातें करें, मतलब ये जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको एक साथ ही चाहिए। मतलब हम तो जो पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स वो बिज़ी रहते हैं कि उनका अपना करियर भी है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा उनके साथ फ्रेंडली हो, तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये जो चीज़ है वो कम हो सकता है। Definitely, you're very much right. The communication should be in communication should be in priority. Just make a particular time at home, like dining table पे we all will dine together and will talk. Parents will start with open-ended questions. आज क्या क्या दिन में तुम्हारे फ्रेंड आए थे, कोचिंग में क्या हुआ, इस सैटरडे हम लोग क्या करने वाले हैं,
इवन जब हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पर भी एक कम्युनिकेशन का अच्छा प्लान करना, सब कुछ एक साथ करना। सो ये वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है कि आपने एक स्कूल रिफ्यूज़ल, एक बच्चा स्कूल जाने से रिफ्यूज़ कर रहा था 3 साल का, उसको भी आपने हील किया है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक छोटा सा आप बता सकते हो कि आपने कैसे उसका रूल आउट किया, कि क्या रीज़न था, और स्कूल में स्कूल के टीचर्स और स्कूल का भी क्या रोल होना चाहिए। बच्चे जैसे स्कूल रिफ्यूज़ करते हैं ना आजकल, बच्चा जाता नहीं है, मना करता है, तो कैसे पता चले और क्या हो सकता है। आप वो इंसिडेंट भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस भी सुने, थोड़ा जाने, जिनके बच्चे अभी स्कूल गोइंग स्टेज में हैं उनको भी पता चले। हाँ, दैट चाइल्ड आई डू रिमेंबर, वो बच्चा क्लास प्रेप में था, ओके, ऑलमोस्ट 4 और 5 इयर्स का था, और मेरे पास प्रिंसिपल की तरफ से आया कॉल कि मैम वो पिछले 1.5 महीने से पेरेंट बहुत परेशान है, वो स्कूल नहीं आता है, इज़ देयर विद एक्सक्यूजेस कि आज मुझे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, एंड दे हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी doctors and there's nothing, no treatment is working, but now one doctor has referred for the child psychologist, तो मैं चाहती हूँ आप उसे देखें। और उस बच्चे को जब मैं देखना शुरू की, तो अर्लियर आई वाज टेलिंग कि साइकोएनालिसिस में वी यूज टू कलेक्ट साइकोपैथोलॉजी, हाँ, हम जमा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इंजरीज थे, कहाँ से बच्चे को ट्रबल हुई है, कहाँ उसने प्रोसेस नहीं किए हैं और ये न्यूरो इमेजेस चले गए उसके मेमोरी में और डाउन डाले उसको तंग कर रहे हैं। अब यहाँ द चाइल्ड, वो तो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करता था, लेकिन उसको ट्रबल तो थी कुछ। आई स्टार्टेड मेकिंग बिल्डिंग द रैपो, उसके साथ रोज मिलना शुरू किया, हम लोग बैठ के ड्राइंग बनाते थे, हम लोग गेम खेलते थे, आप फ्रेंडली हो रहे थे ताकि उनका कॉन्फिडेंस आप जीत सके उस बच्चे का। राइट, फेथ कि हाँ मैम इज अ फ्रेंड फॉर मी एंड आई लव टू बी विथ हर। बस ये बच्चे के अंदर जब आ गया, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग कि क्या हुआ, क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं चलूँ, मैं बैठूँ तुम्हारे साथ क्लासरूम में, बट एवरी टाइम ही यूज टू डिनाई। बट धीरे धीरे विथ आवर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड टूल्स आई वॉज समवेयर सक्सेसफुल आफ्टर 4 to 5 months. That took a great deal of time. And what was the reason? Finally, we concluded with the reason that after summer vacation, teacher had scolded him क्योंकि उस दिन उसके बैग में से पानी का बॉटल खुल के गिर गया था, बुक्स कॉपीज गीले हो गए थे। टीचर ने कहा था, why you did so? Don't come to my class again. Just go back. उसके माइंड में वो रह गया कि स्कूल ही नहीं जाना है फिर। So I would request all the teachers to be very careful with their words. Yes, वेरी ट्रू। तो ये थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम निकाल के ये सब शेयर किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और मैं चाहती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस फैले, एंड आई होप कि फ्यूचर में आप थोड़ा और टाइम देंगे और हम और थोड़ा और एक्सटेंसिव इंटरव्यू करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। आपको कैसा लगा? My pleasure. I love if at all you will be there for to take the interview and all, and we will be capable to bring that awareness, which is very much required right now. Thank you so much मैम। That was the end of the episode, and मुझे लगता है आप सब अवेयर हो गए होंगे, और I hope that you spread awareness as well around you and in your neighbor and community, as mental health is our basic human right and which is very crucial for our personal, community and socio-economic development. So thank you for being a patient listener. Good night everyone.